اس رپورٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کشمیر اسٹیل TMT سریا اور MS سٹی سروسز کرانگر سری نگر۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم عوامی اہمیت کے حامل کہیں موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود ہے PDP لیڈر رو بٹ صاحب۔ ناظرین، جس طریقے سے مرکزی سرکار ڈیولپمنٹ کو لے کے دعوے کر رہی تھی، جس طریقے سے ہر طرف سے ڈیولپمنٹ دکھایا جا رہا تھا، لوگوں کے منوں میں ایک ڈیولپمنٹ ہی ڈیولپمنٹ تھا، اور جس طریقے سے روزگاری پہ بات ہوتی تھی کہ روزگاری بڑھ جائے گی، لیکن اگر گراؤنڈ لیول پہ دیکھا جائے تو گراؤنڈ لیول پہ ایسا کچھ دکھ نہیں رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں لوگ اس کو ایک دھوکہ سمجھتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کے بعد جو ایک خواب دکھایا جا رہا تھا ڈیولپمنٹ کو لے کے، ایمپلائمنٹ کو لے کے، لیکن کہیں نہ کہیں گراؤنڈ لیول پہ ایسا کچھ دکھ نہیں رہا ہے۔ اب ہم مزید بات کریں گے PDP لیڈر بٹ صاحب کے ساتھ۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤنڈ کے ساتھ جڑنے کے لیے۔ دیکھیے، شروعات اگر کریں گے، اگر ہم کسی بھی ابھی پولیٹیشین کا انٹرویو کرتے ہیں تو سب کے من میں پہلا سوال یہی ہے کہ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اور 35A آپ کتنا سہمتی رکھتے ہیں اس سے؟ دیکھیے، جو بھی ہوا غلط ہوا، صحیح نہیں ہوا، یہ غیر جمہوری اور غیر آئینی طریقے سے ہوا، اور اس کے پیچھے ان کی اپنے انٹینشنز تھے RSS اور BJP کے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کی ڈیموگرافی کو وہ چینج کرے، جس میں انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ایمرجنسی، فائنینشیل ایمرجنسی لگانے کی ان کو ضرورت پڑی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جب دیکھ رہا ہے انسان، تو اگر یہی کچھ چلا، جو پولرائزیشن ہو رہی ہے، مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس کے لیے ساری قوم جو ہے، چاہے وہ لداخ کے لوگ ہیں، جموں کے لوگ ہیں یا کشمیر کے لوگ ہیں، سب ایک ہے، ایک پیج پہ کھڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پولیٹیکلی ایز ویل ایز لیگلی اس پہ اسٹرگل کریں گے۔ اچھا، یہ بتائیے، اسٹیٹ سبجیکٹ کو جو ہے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ سے ریپلیس کیا گیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ سارا کچھ فراڈ ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیے، یہاں کے سب سے بڑے لیگل انسٹیٹیوشن میں یہ ابھی کیس چل رہا ہے، سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے، اس کے بعد یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، یہ فراڈ ہو رہا ہے، اللیگلی ہو رہا ہے، یہ بائی فورس ہم پہ جو ہے تھوپے جا رہے ہیں یہ چیزیں۔ تو مجھے لگتا ہے ان کا لائف سپین زیادہ نہیں ہوگا۔ اس سے جو ہے، جب آپ ہو ہر پولیٹیکل جو ہے مسئلے پہ بات ہو، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ لداخ میں بات کر رہے ہیں، یہ جو ہے ناگاز کے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہاں کوئی جو ہے ان کو آپتی نہیں ہے بات کرنے میں۔ یہ دیکھیے، افغانستان میں ان کا سٹینڈ جو ہے بات کرنے کا سٹینڈ ہے، اور اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں جو ہے یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے جس کو ہندوستان بھی مانتا ہے، پاکستان بھی مانتا ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، اسے پولیٹیکلی حل ہونا چاہیے، بات چیت کے ذریعے اس کو حل ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں تیسری دفعہ جو ہے UN میں ڈسکس ہو رہا ہے مسئلہ کشمیر۔ اس سے پہلے آپ یورپین یونین میں اس کو ڈسکس کیا گیا، ہر فورم میں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ جو بیسک حقوق ہے ان کے لیے ہم لڑیں گے۔ اچھا، یہ بتائیے، جس طریقے سے گورنرز بدل رہے ہیں، پہلے ستیہ پال ملک صاحب، اس کے بعد GS مرمو، اور اب منوج سنہا صاحب، کہاں تک لگتا ہے آپ کو یہ کہاں تک سکسیسفل رہے گا؟ کیا اس سے کوئی بدلاؤ آنے والا ہے کشمیر میں؟ دیکھیے، ستیہ پال ملک صاحب ہو یا مرمرے صاحب یا کوئی اور صاحب ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے انٹل اینڈ انلیس کہ آپ ریزالو ایشوز کو کریں۔ یہاں بیسک ایشوز ہے، یہاں کی یوتھ کو آن بورڈ لینا پڑے گا، یہاں پولیٹیکل لیڈرز جتنے بھی بند ہیں ان سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے، یہاں کی پہلی اور آخری جو وومن چیف منسٹر تھی، وہ PSA کے تحت ابھی بند ہے، میڈم آبا مفتی۔ آپ اندازہ کریے یہاں کی جمہوریت کا، یہاں جو ہے کیا سمجھتا ہوں، مجھے شک ہو رہا ہے کہ کیا واقعی یہ اس ملک کا حصہ ہے یا یہ زور زبردستی ہمارے ساتھ یہاں کیا جا رہا ہے۔ یا ہمارے ساتھ تو یہاں زیادتیاں کی جا رہی ہے، اور جو ہے مظلوم ہے ہم۔ اس ملک سے غربت کو ہٹانا ہے، بات چیت کا ایک راستہ جو ہے ہمیں چننا ہوگا، تب جا کے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں، تب جا کے یہاں پیس ہو سکتا ہے، تب جا کے یہاں جو ہے ترقی جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ UT میں جب سے کنورٹ ہوا ہے، اسٹیٹ ہوڈ جب سے ختم ہو گیا ہے، اسپیشل رائٹ چھینے گئے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو ایز اے UT گراؤنڈ لیول پہ کوئی کام ہوا ہے؟ ایز اے پولیٹیشین اینڈ ایز اے کشمیری، کیا آپ کو لگتا ہے گراؤنڈ لیول پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے، کام تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں جو ایڈورٹائزمنٹس نکلی تھی کہ یہاں کے یوتھ کو جو نوکریاں ملے گی، وہ بھی انہوں نے ختم کی، وہ ایڈورٹائزمنٹ بھی ختم ہوئی۔
काम जो है जो पिछली सरकार ने काम किया था जब यहाँ लोकल सरकारें थी, तो उसका 10% काम भी यहाँ नहीं हुआ है। ये जो है इस काम में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ आपको कहीं ना कहीं लोगों के मसले जो है वो हल होंगे? यहाँ जर्नलिस्ट बात नहीं कर पा रहे हैं। जर्नलिस्ट जैसे ही बात करता है उसको जेलों में डाले जाते हैं। जर्नलिस्ट यहाँ के जैसे ही वो सच की बात करता है उसके खिलाफ FIR दिया जाता है। यहाँ के पॉलिटिशियंस बात नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का कॉमन इंसान बात नहीं कर पा। दूसरे दिन वो जेल में होता है, दूसरे दिन उसको केस लगाया जा रहा है, फेक केसों में फंसाया जा रहा है। तो कौन सा ये ग्रीवेंस सेल? यहाँ जब वो लोग जो स्टेट्स में जो है पावरफुल होते हैं, जिनकी एक आवाज़ होती है, लीगल देखिए आप, यहाँ जो बार एसोसिएशन है उनके जितने भी जहाँ जोमा थे वो सारे बंद थे। यहाँ ट्रेड के जितने भी जो है ऑफिस बेयरर्स थे और उनके लीडर्स थे वो भी सारे बंद थे। जब ट्रेड के लीडर्स भी बंद, जब आप बार एसोसिएशन के लीडर्स भी बंद, जब यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लीडर्स भी बंद, पॉलिटिशियंस भी बंद, यहाँ के जो जर्नलिस्ट है उनको ऐसे दबाया जा रहा है, तो कौन सी ग्रीवेंस है? सर आपने स्पेशली अगर बात करें तो पॉलिटिशियंस जो है अभी भी डिटेंशन में है, तो क्या लगता है आपको कि इनको सिक्योरिटी भी नहीं दी जा रही है जैसे पहले सिक्योरिटी हुआ करती थी? सिक्योरिटी पे आप क्या कहेंगे? देखिए ये प्रेशर टैक्टिक्स है। यहाँ सारे लोग जो है, पहले मैं खुद भी उसमें था, जो जिनकी कैटेगराइज थी प्रोटेक्टेड पर्सन्स थे, उनको जो सिक्योरिटी विड्रा करने का इनका एक ही मकसद है कि ये जो है प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं। ये जो है उन लोगों को इन्होंने डिस्क्रेडिट किया जिन्होंने यहाँ 70 साल जो है इस मुल्क के कानून और आइन को चलाया। उन लोगों को ये आज फेक केसों में फंसा रहे हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी इन्होंने ख़त्म की है, उनको आइसोलेशन में डाला है। ये कैसी पॉलिसी है, ये क्या चाहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये एक एग्रेशन है RSS का और BJP का। इसमें कोई भी पॉलिटिकल जो है मुंह नहीं है। ये इसको पॉलिटिकल मुंह नहीं कहा जा रहा है, जिसमें जो आप यहाँ के जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी है, मुझे लगता है सब इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि ये जो है ये RSS और BJP जो है ज़ाती पार्टी के लिए ये सारा कुछ कर रही है। मुल्क को ये दाव पे लगा रहे हैं। मुल्क को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो ये पॉलिसीज़ है, जो ये इनकी जो ये मूव्स कर रहे हैं, आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी से जो है जो फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी एक टाइम ज़माने पे माना जाता था, एक टाइम पे था कि इंडिया वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। उसके बाद बहुत इंसान देख पा रहा था कि बहुत जल्द परमानेंट मेंबर होगा UN का। वो सारे ख्वाब तो चूर चूर हो गए। यहाँ की जो 70 साल जो यहाँ प्रॉस्पेरिटी, जो यहाँ तरक्की हुई थी, वो ख़त्म सारी हुई। आप देखिए GDP माइनस में चल रही है, इकॉनमी क्रैश, इंडस्ट्रीज़ ख़त्म। मुझे समझ नहीं पा रहा है कि उसके बाद भी कैसा ये सारा कुछ चल रहा है। ये ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। जब तक आप लोगों के मसाइल को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक मुल्क नहीं चलता है। रूफ साहब, गुपकार डिक्लेरेशन को लेके आप कितना सहमत है? देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि पहली दफ़ा जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग यूनाइट हुए हैं। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो है इसमें सारे इकट्ठे हुए हैं और पॉलिटिकली अपने जो बेसिक हुकूक है उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इससे बड़ी अच्छी बात नहीं हो सकती है कि हम ये सारे समझ रहे हैं कि हमारी शिनाख्त को जो है मिटाने की कोशिश की जा रही है, हमें जो है डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। इस चाहे वो डोगराज है, लद्दाखी है या यहाँ के कश्मीरी मुस्लिम हैं, इनकी शिनाख्त को जो है डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह हम सब ये जान रहे हैं कि हम जितनी देर तक यूनाइट रहेंगे, जितनी देर तक हम जो है पॉलिटिकली स्ट्रगल करेंगे एक दूसरे को सपोर्ट करके, तब भी हम डिलीवर कर सकते हैं, तभी हम अपने बेसिक हुकूक को वापस ला सकते हैं। और अगर मरकजी सरकार ने इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन इशू की तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए हमारी जो सीनियर क़यादत है वो भी बंद है और बाकी जो सीनियर क़यादत जब बैठेगी, एक कबल वक्त है इस पे बात करना। जब सीनियर क़यादत बाकी पार्टीज़ जितनी भी है, हमारी जो पार्टी की सीनियर क़यादत है, जब वो जेलों से रिहा हो जाएगी, उसके बाद इस पे कोई फ़ैसला होगा। जो भी फ़ैसला होगा वो सबके सामने होगा। इस पे बात करना कबल वक्त है।
आखिरी सवाल रूप साहब, मुझे ये बताइए, अगर पीडीपी की स्पेशली बात करें तो कुछ वर्कर्स ऐसे, लीडर्स ऐसे हैं जो पीडीपी छोड़ के, पीडीपी रिज़ाइन करके कहीं और पार्टीज़ में चले गए, या मीर की बात करें या हम बाकी जितने भी है, शाह मोहम्मद तांतरे है, उनकी बात करें, तो क्या लगता है आपको, क्यों आपकी पार्टी लेफ्ट की जा रही है और दूसरी पार्टीज़ ज्वाइन की जा रही है? देखिए, जो बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा था, हमने उसको रोक के रखा था। आपने देखा होगा कि जब तक कोलिशन सरकार चली तब तक ये कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ पर हमने पाकिस्तान से बात की जाएगी, पॉलिटिकली इस मसले को रिजॉल्व किया जाएगा, उसके साथ साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाया जाएगा, और यहाँ जितने भी हमारे खुद के रिसोर्सेज है वो हमें वापस दिए जाएंगे। तो उस पर फिर आपने देखा कि न सिर्फ इन्होंने विड्रा सपोर्ट किया, जबकि हमने देखा माजी में, अभी भी देख रहे हैं कि जहाँ भी इनकी हुकूमत नहीं होती है, ये कोशिश करते हैं कि वहाँ वो स्टेट पीडीपी के लीडर्स हैं उनको जो है जेलों में डाला गया, उसके साथ साथ उन पे ज्यादतियाँ की गई, हमारे वर्कर्स के साथ ज्यादतियाँ की गई, उसके साथ साथ बाय फोर्स बहुत सारे लोगों को जो है ब्लैकमेल करके पार्टी से निकालने की जो है डायरेक्शन दी गई। उसके बाद इन्होंने जो है बहुत सारे लोगों को जो है बाय फोर्स हमारी पार्टी से निकाला, हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। उसके बज़ाहिर तो यही लगता है कि इन्हें इस चीज़ का बिल्कुल इल्म है कि अगर कोई तर्जुमानी, अगर कोई जज्बात, एहसासात की तर्जुमानी करती है वो पीडीपी करती है। पीडीपी बिल्कुल इन चीज़ों पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो हमारे बेसिक हुकूक है उन्हें जो है रेस्टोर इनको करना होगा, और जो हमारा बेसिक मुद्दा है कि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में पीस आए, अमन आए, तो उसके लिए बातचीत जो है हर स्टेक होल्डर से करनी होगी इनको, और तब जाके जो है इस खित्ते में अमन आ सकता है। ये सारा कुछ जो है आपने देखा, ये इन्होंने इसलिए किया, ये तोड़ने की कोशिश या पार्टी बनाने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों की आवाज़ कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें ये नाकाम होंगे, इसमें ये कामयाब नहीं होंगे। जो इनकलाब होता है, जो एक रेवोल्यूशन होता है, उसमें लोग आते हैं जाते हैं, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता है। सिर्फ इंसान, वही लोग मंजिल पे पहुंचते हैं जो हमेशा जो है बाय कन्वेक्शन अपने जो है हुकूक और अपने जो बेसिक जो एजेंडा होता है उस पे जुड़े होते हैं। हम उसके साथ जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन आए, यहाँ ये खून खराबा बंद हो, तो इसलिए जो है इस पे हम कायम व दायम हमारी पार्टी है। इंशाअल्लाह ताला एक वो दिन दूर नहीं होगा जब यहाँ से ये गुर्बत, यहाँ जो है ये जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, खून खराबा हो रहा है, ये सारा कुछ बंद होगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ जो है पीस आएगा, यहाँ बात करनी होगी पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जो कश्मीर के लोगों को, तो इंशाअल्लाह ताला ये मसला रिजॉल्व पॉलिटिकली होगा, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए भी अच्छे दिन आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रूप साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी आज की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए मैं श्रीनगर से कश्मीर क्राउन की तरफ से फजा ज़ैनब। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।